चुप कीजिएगा क्योंकि मैं इंट्रोडक्शन पढ़ूंगा। डियर फ्रेंड्स, मैं आपका नुमाइंदा काजी तारिक हबीब, पीआर न्यूज इंडिया से आपका खैर मकदम करता हूं प्रोग्राम हमारी आवाज। डियर फ्रेंड्स, हमारी आवाज आज दे रहे हैं ओबीसी और चोपन कम्युनिटी वाले। इनके मसाइल अभी तक हल नहीं हुए हैं, ये परेशानियों में मुलतवा हैं, काफी ज्यादा परेशानियों में हैं। तो आज जो डिबेट है हमारा चौपान वालों के साथ है और ओबीसी वालों के साथ है। अभी जो गेस्ट हमारे आए हैं मिस्टर गुलाम मोहिद्दीन चौपान है, मिस्टर गुलाम मोहम्मद चौपान साहब है, मिस्टर अब्दुल लतीफ मलिक ओबीसी से हैं। मैं पहले स्टार्ट करना चाहूंगा मिस्टर लतीफ साहब से। आप सबको मैं खैर मकदम शो में करता हूं। लतीफ साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल सर, बिल्कुल आ रही है। ओके लतीफ साहब, मेरे को बताइए व्हाट डज ओबीसी स्टैंड फॉर? थैंक यू। ये जो ओबीसी, व्हाट डज ओबीसी स्टैंड्स फॉर? ओबीसी इज ए कोलेक्टिव टर्म। अदर बैकवर्ड क्लासेस means that classes collectively made as a category which we term it as an other backward classes which are backward, like scheduled caste and scheduled tribes are two different communities. These are the tribes, scheduled tribes and scheduled castes. But whereas other backward classes, that is different classes of pupils which are backward, which are unlifted, which are not properly representative in the government jobs and in the political decisions of the country and state. And in order to upliftment of these communities, these communities constitute a big chunk of the out of the entire population of the country. Therefore, from different time to time, government has felt the necessity that these communities should be collectively attempted to be promoted in every part, in every sphere of the life, in order to for the development of the nation as a whole. तो इसमें constitutional provisions came to be inserted. Whenever constitutional provisions are made in the parliament, it means the matter is of grave concern for the government. Once the matter severity is very serious, then and only then the constitutional provisions can be made. कैरी ऑन कीजिए लतीफ साहब, मैं सुन रहा हूं, ये नेटवर्क इशू चल रहा है थोड़ा सा, कैरी ऑन कीजिए। Okay. Therefore, constitutional provisions were made and the constitutional lawmakers felt the necessity that all these classes which are not properly represented in the educational field, in the government jobs, in the political scenario, these will be identified. Then from time to time, committees came to be constituted, commissions came to be made, even by the state government, then state governments, and even at the national level. National levels, two commissions came to be constituted, which are widely discussed in every scenario. That is, one is Kaka Kalerkar Commission, and the second one is the Mandal Commission. Mandal Commission was constituted by the President of India to identify the classes which are backward and recommend the steps which are required to be taken by the government for the upliftment of these communities, classes. Then Mandal Commission conducted detailed survey and submitted the report to the government, identified number of classes from different states and recommend
reservation, half of their population, which was estimated at 54% of the total population. And so accordingly, Mandal Commission recommended 27% reservation in government jobs and promotions. In its final report, 27%, 50% of the estimated population of the OBCs. So thereafter, the Mandal Commission came to be implemented in the rest of the country after the passing of the Constitutional Bench judgment of the year 1992, Indra-Sawhney judgment. That is a historical and classic judgment by the Honorable Supreme Court, by the 9 judges bench. But unfortunately, BUI pupils, the residents of the Jammu and Kashmir, belonging from other backward classes, was also backstabbed at that time by the then ruling governments, by the then ruling allied class. Instead of granting reservation as directed by the Mandal Commission and implemented by the state government and finally upheld by the Supreme Court, they further classified other backward classes into different classes, and despite the fact that the major population is from the other backward classes, they identified 21 communities at that time also as other backward classes, in the category of other backward classes, but other nomenclature was changed. Other backward classes in Jammu and Kashmir as on date came to be known by the nomenclature of other social castes. Whereas the constitutional term, whereas the term used by the Government of India, by the Mandal Commission, is other backward classes. Therefore, there is a great conspiracy behind this. The conspiracy is to deprive the real beneficiaries from the benefit of the reservation. Carry on, sir. Hello. Carry on. So the Carry on, please. The basic motive is to deprive the real OBC from this benefit. So they created a new class of pupils that is termed as resident of backward area. And out of 27% reservation, 21% reservation was given to residents of backward area, irrespective of their class, color and creed. Whereas this benefit is only required to be given to the persons belonging to other backward classes. Only to other Okay, backward sir. classes. Okay, carry on. Please carry on. But till date we are deprived. In spite of the 5th of August 2019 decision by the Government of India, old Reservation Act of the Jammu and Kashmir is still being carried on by the government. It has not been repealed. That was intentionally retained by the government, and only as on date we are only getting 4% reservation. 4% reservation, despite the fact that as on today 27 communities has been notified as communities belonging under the category of other social caste. It Okay. is very, Carry on, please. Please carry on. actually our voice is repeating. Don't worry. You can carry on. I'm listening. I'm listening. It's getting recorded. You can carry on. Okay, sir. It is very unfortunate for the resident pupils of Jammu and Kashmir that even till date we are not getting the benefit of the 27% reservation as is given
and being enjoyed from the last more than 3 decades, while the other pupils belonging to the other backward classes of the rest of the country, we are still deprived. We are only getting 4% reservation. As and when the enhancement of income slab is increased by the Government of India, our state government did not enhance it timely. Moreover, as on today's scenario, the Department of Social Welfare and the other backward classes commission has recommended the inclusion of 15 more classes. 15 more classes in the list of the other social class. Then, as and when that recommendation is accepted, the community is notified under the other backward classes list will be 42 communities, and the reservation percentage is 4%. Only 4%. This is a joke by the government with the pupils of the Jammu and Kashmir. So again we are raising our voice, and in the last parliamentary session, we are expecting that our identity will be restored by changing the nomenclature from other social class to other backward classes. But again, it's unfortunate for good people that bill was not tabled in the parliament. एडवोकेट लतीफ साहब, वी आर गेटिंग अ मैसेज कि आप उर्दू में बात कीजिए. ओके. ऐसा है कि आज की डेट में अगर कमीशन की रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर ले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो कम्युनिटी हो जाएंगी इन ऑन द पैटर्न ऑफ अदर बैचलर क्लासेस इन द कम्युनिटी, और उनको रिजर्वेशन दे रहे हैं 4% सारी के लिए. ये तो एक मजाक है. हमारे हकूक आज से नहीं 1992 से सुना जा रहा है, और हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बड़ी उम्मीदें थी. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाइम एंड तो रेजिडेंट ऑफ ओबीसी जम्मू एंड कश्मीर के साथ वादे कर रही थी कि हम जो है आपको आपका हकूक वापस देंगे, और 9 साल हो गए हैं, आज तक हमें वो हकूक अभी तक वापस नहीं मिला है. लास्ट पार्लियामेंट्री सेशन में कश्मीर के अवाम को ओबीसी से ताल्लुक रखने वालों को बड़ी उम्मीद थी कि हमें हमारा नॉमिनेशन वापस मिल जाएगा, हमारी आइडेंटिटी के साथ जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्कुलेटेड ए बिल न्यूज में आ रहा था कि जी ओएससी से ओबीसी में नॉमिनेशन काटेंगे जम्मू कश्मीर के ओबीसी का. और हमारी फिर भी बात होती रही कि वो बिल जो है वो पार्लियामेंट में टेबल ही नहीं किया गया, डिस्कशन में वो बिल पास नहीं हुआ. उसके बाद 5 दिन के लिए सेशन बुलाया गया पार्लियामेंट में. फिर जम्मू कश्मीर के ओबीसी को एक उम्मीद की किरण जागी, और फिर भी जो है वो बिल टेबल नहीं हुआ, और जम्मू कश्मीर का ओबीसी अपने हक से जो है आज भी महरूम है. आज भी एक बड़े अफसोस में है, दुख में है कि उनका आवाज सुनने वाला कोई नहीं है. उनकी आवाज कहीं भी सुनी नहीं जा रही, ना तो साबका हुकूमतों ने सुनी, ना मौजूदा हुकूमत उस मसले को हल करने के लिए कोई पॉजिटिव स्टेप ले रही है. खोखले वादे किए जा रहे हैं आज भी. तो डिस्पाइट द फैक्ट के लास्ट सेशन में जम्मू कश्मीर को अपनी आइडेंटिटी वापस होने की बड़ी ज्यादा उम्मीदें थी, व्यवस्था थी गवर्नमेंट से, और उन पे भी पानी सा फिर गया, क्योंकि वो बिल जो है वो पार्लियामेंट में रखा ही नहीं गया, वो डिस्कस ही नहीं है. तो जम्मू कश्मीर का जी ओके. I'm sorry to interrupt you because there are other panelists also, but no doubt आपका कहना बिल्कुल वजह है. तो मैं मिस्टर गुलाम मोहम्मद चौपान साहब से पहले क्वेश्चन करता हूं. सर, व्हाट इज द रोल ऑफ चौपान इन ओबीसी एंड एससी एंड एसटी? मिस्टर गुलाम मोहम्मद चौपान, रोल क्या है ओबीसी चौपान कम्युनिटी का? व्हाट इज द रोल ऑफ चौपान कम्युनिटी? क्या है कम्युनिटी का रोल
ओबीसी में और एसटी और एससी में? प्लीज डिटेल में हमें बताइए। ठीक है सर, ठीक है सर। सर अभी लतीफ साहब भी बड़ी अच्छी तरह से इसको वाज़ेह किया है। चौपान कम्युनिटी जो है ये अगर इसको ओबीसी के नजरिए से देखा जाए तो ये ओबीसी भी में भी प्रेफर करती है कि ओबीसी इसका हक है। अगर लेकिन एससी में ये चौपान कम्युनिटी नहीं है। अलबत्ता सोशल ये एसटी के लिए हम डिजर्व करते हैं। एससी में ये कहते हैं कि इसमें शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड कास्ट चौपान कम्युनिटी नहीं है। अलबत्ता सोशल कास्ट इन्होंने पिछली बार हमें किया था, गवर्नमेंट ने एक इस जो हमारा आजकल कमीशन में आया है पिछली बार, लेकिन वो अभी हमारे हक में एससी का ये सोशल कास्ट का वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। कहीं से हमें कोई इस बारे में कोई ये ऐसी शहादत नहीं मिलती। हम हर बार इसके पीछे जा रहे हैं। हमारे बच्चे, हम खुद गए हैं तहसील ऑफिस पे, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस पे कि ये सोशल कास्ट से सर्टिफिकेट हमें मिले, लेकिन इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट ने कहीं की नहीं। और दूसरी बात ये जो चौपान कम्युनिटी है एसटी के लिए क्यों डिजर्व करती है? एसटी का इसमें अहम रोल ये है कि हम आपको पिछली बार भी हम कह चुके हैं और इंशाल्लाह आपके नॉलेज में भी है कि जो हमारी ये क्या कहते हैं इसको, हम गुजर, बकरवाल और चौपान, इनका सेम ट्रेड है। अगर गुजर बकरवाल एसटी में आते हैं तो चौपान क्यों नहीं? क्योंकि हम वो पेस्टोलिस्ट जो हमारा जो अपना ट्रेड है पेस्टोलिस्ट में आते हैं। तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो हम एसटी का डिजर्व करते हैं, एसटी हमारा हक है और एसटी हमें मिलना चाहिए। जिस तरह गुजर बकरवाल को मिल गया उस तरह हमें भी मिलना चाहिए। और अदर ओबीसी में अगर हम हमें देखा जाए ओबीसी में जो हमारा रोल है इस वक्त, अदर बैकवर्ड क्लास लोकलिटी में हम जाके देखते हमारी सोशली और हमारी जो इस वक्त सोशल लाइफ है ये कंप्लीट बैकवर्ड क्लास। हमारा लाइवहुड देख लीजिए सर आप, हमारा एजुकेशनल स्टैंडर्ड देख लीजिए, हमारा इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड देख लीजिए, पूरा ओबीसी में इसमें बैकवर्ड में आ जाता है। लेकिन हमें बदकिस्मती से न हमें अपना कोई ओबीसी में कोई ऐसा स्टेज मिला है, न एसटी में कोई स्टेज मिला है, न कोई सोशल कास्ट में मिला है। सोशल कास्ट सिर्फ अनाउंस हो गया है। तो इस नजरिए से अगर देखा जाएगा तो हम सोशल कास्ट में आ सकते हैं और ओबीसी तो हमारा ये बिल्कुल नजरिया ही है। इस वक्त लोग हमें ओबीसी के नजरिए से देखते भी हैं। हमारी जो सोशल लाइफ इस वक्त है उसमें बिल्कुल वाजह तौर से हम, क्योंकि हमारा जो इंटरमैरिज जो सिस्टम है इस वक्त, तो इसी नजरिए से कि ये ओबीसी में आते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं। और एसटी के लिए हम तो डिजर्व करते हैं कि हमारा पास्चर्स में, डाउन में, स्वीट में, फॉरेस्ट में हमारा जो ट्रेड है ये चलता ही इसी पर। ओके सर, कैरी ऑन सर, कैरी ऑन प्लीज। मैं गुलाम हसन साहब को इन कर रहा हूँ, आप कैरी ऑन कीजिए। ठीक है सर। दूसरी बात अगर इस वक्त गवर्नमेंट ये अपना ये वादा पूरा करे कि ओबीसी को 27% रिजर्वेशन इन्होंने दी है, लेकिन कहीं लगता नहीं है कि उनको ये मिले हैं। अगर चौपान कम्युनिटी को एससी में 4% मिले हैं, लेकिन कहीं लगता नहीं कि हमने वो ये हासिल किया है, या कहीं लगता नहीं कि कहीं इम्प्लीमेंट हो गया है। उस बुनियाद पे हमारा कोई बच्चा कहीं एडमिट हो गया, कहीं एडजस्ट हो गया, कहीं किस तरीके से कोई फायदा मिल गया। तो अगर ऐसा कुछ हो गया होता तो हम भी आपके माध्यम से इस वक्त इसका ऐलान कर देते कि हाँ जी हमको ये बेनिफिट मिल गया है। और हम भी ओबीसी का जो ये इस वक्त ये स्टेज है, बिल्कुल हम लतीफ साहब के इस मुद्दे के साथ बिल्कुल मौक़िफ़ रखते हैं। यही हमारा मौक़िफ़ भी है और इनका भी यही है कि हमेशा
फ्रॉम लास्ट जब से ये ओबीसी का स्टैंडर्ड सामने आया है तब से लेके आज तक तो हमारे साथ इससे साल ही हुआ है, हर एक कम्युनिटी के साथ। हाँ, पार्लियामेंट में भी, मंडल कमीशन में भी चौपान एसटी के लिए डिजर्व हो गया है, और यहाँ हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली में भी चौपान एसटी के लिए डिजर्व हो गया। लेकिन तब से लेके आज तक 25 साल हो गए, 25 सालों में भी हमें कुछ नहीं मिला। और जब हमारी आवाज ही नहीं सुनी जा रही है कहीं से, जब हमारी आवाज ही नहीं किसी के कानों तक पहुंचती थी, तो हम कैसे करें? इसलिए कि हम आपके आभारी हैं इस मुद्दे पर कि आप इस वक्त हमारी आवाज आगे तक ले जा रहे हैं। कोई हमारा सुन रहा है अभी। ओके सर मेरे को बताइए मिस्टर लतीफ, एक क्वेश्चन हमारे को भेजा है, ये इरम जी ने भेजा है, वेयर डू ओबीसीज एग्जिस्ट? ओबीसीज कहाँ एग्जिस्ट करते हैं मिस्टर लतीफ? मिस्टर सईद लतीफ साहब, मिस्टर लतीफ साहब, ओबीसीज कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? ओके, there's another question now to Mr. Ghulam Mahideen साहब, प्लीज पहले मैं लतीफ साहब से पूछूं, ओबीसीज कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? वेयर डू ओबीसीज एग्जिस्ट? थैंक यू। जहां तक ओबीसी का एग्जिस्टेंस का सवाल है, ओबीसी इज प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी पार्ट एंड कॉर्नर ऑफ द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर के हर हिस्से में, हर जगह पे, कहीं भी आप चले जाइए, आज की डेट में जो 27 कम्युनिटीज नोटिफाइड हैं, हर जगह उनकी मौजूदगी, हर जगह वहां वो रहते हैं। वो चाहे जम्मू प्रॉपर में हो, चाहे सांबा प्रॉपर में हो, चाहे कठुआ में हो, बनी बसोली, लोंग डिस्ट्रिक्ट, उधमपुर, डोडा, कहीं भी आप कश्मीर में चले जाइए, अनंतनाग में या बाकी पार्ट ऑफ द स्टेट में, हर जगह आपको ओबीसी मिलेगा। और बदकिस्मती से हर जगह जो ओबीसी आपको मिलेगा वो पिछड़ा वर्ग मिलेगा। वो पिछड़ा हुआ, इकोनॉमिकली वीक होगा, पॉलिटिकली वीक होगा, एजुकेशनली कमजोर होगा। उसकी वजह ये है कि वो तलीमी सतह पर कमजोर है, वो एजुकेशन कमजोर है, वो फाइनेंशियली इकोनॉमिकली को जो है वो वीक है। उसकी वजह एक ही है कि किसी भी सरकार ने आज तक उनकी भलाई या बहबूदी के लिए, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए कोई कदम नहीं उठाया। प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटी पे किसी ने नहीं उठाया। जो हुकूमतें आई, उन्होंने हर दफे ओबीसी को वोट बैंक के नाम पर इस्तेमाल किया। इलेक्शन से पहले वादे किए, बड़े बड़े वादे किए कि हम पावर में आएंगे तो आपका हक जो है, आपका 27% से लागू करेंगे। उसके नाम पे बाद में 2% लागू किया। वो 2020 तक 2% ही रहा, और 2020 में 2% से बढ़ाकर 4% किया। 27 कम्युनिटीज हैं, 15 और कम्युनिटीज को इंक्लूजन के लिए रिकमेंडेशन हुई है। जब वो इंक्लूजन हो जाएगी, 42 कम्युनिटीज इन टोटल जम्मू कश्मीर में आइडेंटिफाइड कम्युनिटीज हो जाएंगी जो अदर बैकवर्ड क्लासेस से ताल्लुक रखती हैं। और रिजर्वेशन को एनहांसमेंट करने की, और रिजर्वेशन को एड पार भी रेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, जो बाकी जगहों पे जैसे 27% रिजर्वेशन है, उसको इम्प्लीमेंट करने की स्टेट कमीशन हमारा बात नहीं करता। हमारा स्टेट कमीशन और सोशल बैकवर्ड क्लासेस का जो डिपार्टमेंट है, वो इंक्लूजन की बात करता है कि आज 15 कमेटी और डाल दो। वो ये बात नहीं करते कि 27% इम्प्लीमेंट की रिकमेंडेशन करें, वो नहीं करते हैं ना आज तक। ओके, इनकी जहां राइट सर, उसकी सर प्लीज कैरी ऑन लतीफ साहब। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, 73rd और 74th अमेंडमेंट में आए थी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो प्रावधान बना है कि उनकी रिजर्वेशन को रखें।
उनकी रिजर्वेशन पॉलिटिकली जो है अपलिफ्ट करने के लिए पंचायत लेवल पे, म्यूनसिपैलिटी लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट जो है अप्रोप्रिएट इलेक्ट करी, जिसको आर्टिकल 243D 243D6 और T6 कहा जाता है। बट आज तक जम्मू कश्मीर में वो आर्टिकल्स भी इम्प्लीमेंट नहीं किए, कोई रिजर्वेशन नहीं दी जम्मू कश्मीर में ओबीसी को अपलिफ्ट करने के लिए, ना पंचायती इलेक्शन में, ना म्यूनसिपैलिटी इलेक्शन में, ना कहीं असेंबली इलेक्शन में उनकी रिजर्वेशन की कोई बात होती है, ना उनकी जॉब में वो रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट करने की बात करते हैं। हाँ, ये बात एडमिटेड फैक्ट है, गवर्नमेंट इस बात को मानती है कि जम्मू कश्मीर में ओबीसी जो है हर एक खित्ते में एग्जिस्ट करता है, मौजूद है, और एक बिग चंक का पॉपुलेशन एटलीस्ट अगर वो 42 कम्युनिटीज को हम ऐड कर लेंगे आज की डेट में, तो ओबीसी की जो पॉपुलेशन होगी दैट विल बी अराउंड इन बिटवीन 40 to 45% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन जो जम्मू कश्मीर की है। और 45% या 40% पॉपुलेशन को आप 4% रिजर्वेशन करेंगे तो उसमें उनकी बढ़ाई पूंजी कहाँ होगी, और उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन से महरूम रखेंगे। पंचायती लेवल पे लोकल बॉडी इलेक्शन में उनको कोई रिजर्वेशन नहीं देंगे, अलबत्ता कि वो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ कंट्री में ऑलमोस्ट हर जगह इम्प्लीमेंट हो गई है। मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, यूपी में अदर बैकवर्ड क्लासेस को पंचायत इलेक्शन में, म्यूनसिपैलिटी इलेक्शन में सीटें रिजर्व करके उन्होंने इलेक्शन करवाई है, बट जम्मू कश्मीर में आज भी उसका कोई नामो निशान नहीं है। सर एक्सक्यूज मी सर, मैं मिस्टर गुलाम मोहिद्दीन साहब से कहता हूं सर, बिकॉज हर एक को अपना टाइम देना है। मिस्टर लतीफ, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड दैट। ओके सर, प्लीज गो इशू। हाँ मिस्टर गुलाम मोहिद्दीन साहब, मेरे को बताइए, डू ऑल स्टेट्स यू चोपन एंड रिकॉग्नाइज देम? इस पे आप बताइए जवाब। क्या सारे स्टेट्स और यूटी एक्सेप्ट करते हैं, तस्लीम करते हैं चोपन और उनको रिकॉग्नाइज करते हैं? जी सर, पहले सारे जो पैनलिस्ट उनको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, जैसे कि हमने पहले भी कहा है कि जो भी स्टेट इंडिया में है, ओनली एक्सेप्ट द यूपी जेके, हर जगह पे चौपान एज ए पेस्टोरलिस्ट काम कर रहा है और उसने एसटी हासिल की है सर, उनको रिकॉग्नाइज किया है। हर स्टेट में कोई भी स्टेट नहीं है जहां पे एक भेड़ पालने वाला, एक चौपान, चाहे वो किस नाम से, गडरिया के नाम से, किस नाम से का जाना जाता है, उनको एसटी मिल रही है। रही बात सर हमारे यूटी की, अगर हम ये जाने कि क्या हम ओबीसी में आते हैं, मुझे लग रहा है सर, जैसे कि लतीफ सर ने कहा कि यहाँ पे हर एक कॉर्नर में ओबीसी वाला रहता है। नो डाउट वी आर आल्सो बिलोंग्स टू देम, हम भी उनके साथ हैं, क्योंकि जब हमें कहीं पे रखा ही नहीं है तो उनके साथ रखा है। अगरचे अभी हमें उसमें रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिली है, गवर्नमेंट ने 15 कम्युनिटीज को इंक्लूडिंग चौपान वगैरह उसमें ऐड किया है, तो अभी वो इन अबेयनेंस में है, तो वो देखेंगे कब उसका क्या होगा। लेकिन गवर्नमेंट शायद ये चाहती है कि शायद यहाँ पे कोई ओबीसी वाला है नहीं। जैसे कि लतीफ सर ने कहा कि 45% यहाँ ओबीसी की पॉपुलेशन है, तो 45% के हिसाब से हमें कम से कम 25-27% मिलना ही चाहिए था। अगर रेस्ट ऑफ द कंट्री हर एक, मतलब वहां पे ओबीसी है, एसटी है और एससी है, तो ओबीसी को अपना हिस्सा शेयर मिलता है।
तो हमारे यूपी में तो उसका नाम ही नहीं है। 2% से 4% उसका कर दिया, ऊपर से हम लोगों को भी उनके साथ मिला दिया सर। तो क्या होगा, कौन सा शेयर हमें वहां पे मिलेगा, जबकि हमारे सारे जो भी हमारा क्राइटेरिया है वो एसटी के लिए है, और एसटी में हमें वो रिकॉग्नाइज भी नहीं करते हैं। तो इस तरह से सर हम एक मुकमसे में हैं, एक परेशानी में हैं कि ओबीसी वाले खुद ऐसे हैं कि उनके पास है नहीं शेयर देने के लिए। जहां से 42 कम्युनिटीज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ यूटी उसमें ऐड की है, तो गवर्नमेंट को चाहिए, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, गवर्नमेंट को इस पर जल्दी डिसीजन लेना चाहिए कि क्या करना चाहिए ओबीसी के लिए। तो चौपान बेचारा न घर का है न घाट का है, न ये रेस्ट इंडिया का रहा न ये यूपी का रहा। रेस्ट इंडिया में चौपान जैसे ट्रेड करने वाले, चौपान जैसे प्रोफेशन में जो लोग हैं उन सारों को एसटी मिला है, लेकिन इस देश के जो यूपी है इसमें लद्दाख यूपी में चौपान को एसटी है, गुरेज में चौपान को एसटी है, जम्मू और कश्मीर ये 2 खिते हैं जहां पे एक चौपान को एसटी नहीं मिल रही है। हमारे हक में यहाँ की जो असेंबली है उसने भी हमारे हक में करारदाद पास की है। जो पहले स्टेट बैकवर्ड कमीशन है उन्होंने हमें हमारे हक में रिपोर्ट दी है। जो उस वक्त की गवर्नमेंट है उसने रिकमेंड किया है, फिर भी अभी तक 29 ईयर हो गए सर कि चौपान को रेस्ट ऑफ द कंट्री के चौपान के साथ एसटी नहीं दी जाती, जबकि रेस्ट ऑफ द चौपान जो इंडिया में है उनको एसटी है, लेकिन जेके यूपी में एसटी नहीं है। इसलिए हम जी सर ये लतीफ साहब कुछ कहना चाहते हैं आपसे। लतीफ साहब कुछ कहना चाहते हैं। जी लतीफ साहब, चौपान मिस्टर गुलाम मोहिद्दीन साहब सुन रहे हैं, प्लीज आप अपना बताइए। आप बीच में क्वेश्चन दिखा रहे थे, उंगली दिखा रहे थे। वे गुलाम मोहिद्दीन चौपान साहब का बिल्कुल बात दुरुस्त है कि इनका जो रहन सहन है, इनका जो कल्चर है, इनका जो ट्रेड है वो एसटीज के साथ मिलता है। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इनको एसटी के हक से महरूम करने के लिए एक साजिश के तहत इनको ओबीसी में डाला जा रहा है। हालांकि ये रियली ओबीसी डिजर्व नहीं करते हैं। ये इनका जो है रहन सहन, जो पेशा, जो वो बिल्कुल एसटी से मिलता है। और ये एडमिटेड बात है कि रेस्ट ऑफ कंट्रीज में जो चौपान लोग हैं उनको एसटी का दर्जा दिया गया है, उनको एसटी रिकॉग्नाइज किया गया है। और जम्मू कश्मीर में चौपान को एसटी में क्यों डाला जा रहा है, रादर के उनको ओबीसी में क्यों डाला जा रहा है? ये सिर्फ एक है कि बेसिकली ओबीसी को अपलिफ्ट करना है और ना ही चौपानों को उनका हक देना है। एक तो क्लासेस बढ़ाते ओबीसी में इंक्लूजन के लिए गवर्नमेंट जो है वो आगे आगे बढ़ाती जा रही है, रिजर्वेशन को बढ़ाती नहीं है। दूसरा जो कम्युनिटीज बेसिकली राइट प्लेस में रखा जाए वो एसटी डिवीजन करते हैं, और रेस्ट ऑफ द पॉलिटिकल कंट्री में उनको एसटी ट्रीट किया जाता है। जम्मू कश्मीर में एक अलग से क्यों है कि इनको एसटी में नहीं डालेंगे, ओबीसी में डाल देंगे। ये चौपान कमेटी के साथ बिल्कुल एक बेइंसाफी है, ये बात सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओके सर, एक क्वेश्चन आया है मिस्टर इम्तियाज साहब का। आइडेंटिफाई द कम्युनिटीज ऑफ ओबीसीज, मिस्टर लतीफ साहब, और उसके बाद मिस्टर गुलाम मोहिद्दीन चौपान साहब बोलेंगे, और उसके बाद मिस्टर गुलाम मोहम्मद चौपान साहब बोलेंगे। पहले मिस्टर लतीफ। क्वेश्चन है, प्लीज आइडेंटिफाई द कम्युनिटीज ऑफ ओबीसीज। ये जो ओबीसी कम्युनिटीज है दैट हैज बीन नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जैसे तेली थे, तरखान, ये जो अलग अलग लोहार, इन कम्युनिटीज को टाइम टू टाइम शुरू में इसी कम्युनिटी गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया। वो क्या था
नोटिफाई, उसके बाद उनकी लिस्ट 25 हो गई, फिर 27 हो गई, 15 कम्युनिटीज अदर बैकवर्ड, हमारे जो बैकवर्ड क्लासेस स्टेट कमीशन है उसने और गवर्नमेंट को लिखा, फिर कमिश्नर सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर ने उसकी इंक्लूजन का पहले रिकमेंड किया, देन वो आर्डर कैप्टन ने ब्लॉक रखा। आज की डेट में 42 कम्युनिटीज है, उसमें तो पाक बस रिफ्यूजीज भी है। 20 कम्युनिटीज को इंक्लूजन और डिलीशन का जो काम है ये बेसिकली सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का है। इन कंसल्टेशन एंड ऑन रिकमेंडेशन जो है वो अदर बैकवर्ड क्लासेस का जो स्टेट कमीशन है। इसीलिए ये जो कम्युनिटीज है जो ऑलरेडी इस लिस्ट में है, इसकी इंक्लूजन और डिलीशन का जो है वो टाइम टू टाइम डाटा चलता रहता है, और डिलीशन और किसी की आय तक हुई नहीं, इंक्लूजन की बात हो रही है और रिजर्वेशन एनहांसमेंट की बात नहीं हो रही है। ये बड़ी एक दुखदायी बात है कि ओबीसी की रिजर्वेशन एनहांसमेंट की बात कोई नहीं कर रहा, इंक्लूजन डिस्क्लूजन की बात करते हैं। और रियली मुद्दा जो है बेइंसाफी तो सिर्फ परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन से हो रही है, जो देख के रखी है 2% 4% का मजाक सब ला के रखा है। ओके सर, मैं मिस्टर गुलाम मोहिद्दीन साहब से बोलना चाहूंगा, प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द कम्युनिटीज ऑफ ओबीसीज। जी सर, जहाँ पे इनकी आइडेंटिफिकेशन का ताल्लुक है सर, जहाँ तक हम मतलब देख रहे हैं कि इसमें कौन कौन सी कम्युनिटी को इंक्लूड किया जा रहा है। एक्चुअली जो कम्युनिटीज ओबीसी में है या अदर सोशल कास्ट में, एक्चुअली ये वो लोग हैं जो आम जमींदार के लिए, जो आम लोगों के लिए काम करते थे, जो कुछ न कुछ स्मॉल ट्रेड करते थे ताकि दूसरे लोगों को उससे फायदा मिले। फॉर एग्जाम्पल तरखान, लोहार, तेल मतलब जो तेली थे, मतलब ऐसे ऐसे, या शेर गुजरी, ये बहुत ऐसी कम्युनिटीज हैं जिनके पास अपनी जमीन नहीं थी, तो उन्होंने कुछ अपने ट्रेड चलाए थे जो कि दूसरे लोगों की मदद करते थे, तो उनको आइडेंटिफाई किया गया है और इस अदर सोशल कास्ट में रखा गया है। मतलब एक्चुअली जो भी ये कम्युनिटीज है, दीज आर द लैंडलेस कम्युनिटीज, इनके पास अपनी लैंड नहीं है सर। ओके, मेरे को बताइए मिस्टर गुलाम मोहम्मद साहब, जो चौपान कम्युनिटी है क्या ये रिकॉग्नाइज की जाती है सब जगह? सब जगह मतलब everywhere in the country, is it recognized by different names? यस सर। तो अभी मेरे को आप बताइए। मोहिद्दीन साहब अभी बात कर रहे थे, पूरे हिंदुस्तान में जितने रियासतें हैं उनमें भेड़ पालने वाले आपको मिल जाएंगे, चाहे आप राजस्थान में देखें, चाहे आप दिल्ली में देखें, चाहे कहीं भी, जहां से भी हमारा जो लाइव स्टॉक प्रोडक्शन फॉर मटन यहाँ आ रहा है श्रीनगर के लिए, वो चौपान ही पालता है। लेकिन जो चौपान जो हमारी जो इस वक्त जो हमारा नामन कल्चर चौपान है, ये हमारी रीजनल ये पहचान है। जम्मू कश्मीर में चौपान हमारी रीजनल पहचान है, सिर्फ लैंग्वेज डिफरेंस है, बाकी सब जगह पे चौपान का एसटी के ज़ुमरे में लाया गया है। जम्मू, उधमपुर और इस एरिया किश्तवाड़ एरिया में जो भी चौपान का काम करते हैं उनको गद्दी के नाम से जाना जाता है। बाकी पुनुष, रजौरी, वो दूसरे हाईलैंड ये जो पासेर एरिया है, ये हमारी वैली के साथ में, इसको चौपान के नाम से जाना जाता है। एज पर द ट्रेड हमारा जो है भेड़ बकरियां पालना, शेफर्ड का काम करना, ये मुल्क के सारे रियासतों में, आप चाहे सिक्किम में जाइए, चाहे उत्तरांचल में जाइए, चाहे यूपी में जाइए, चाहे कहीं में भी जाइए, भेड़ बकरियां पालने वाले आपको मिल जाएंगे। वो कहीं ओबीसी में आए हैं लेकिन सारे के सारे एसटी में आ चुके हैं। ये मतलब हमारे सामने ये है। अभी मनी साहब कह रहे थे लद्दाख में जो हमारे भेड़ पालने वाले भाई है उनको चंगपा के नाम से जाना जाता, वो एसटी में आए हैं। गुरेज में तो वो भी चंगपा के साथ उनका ये लिंक है क्योंकि उनकी लैंग्वेज भी ऐसी है, वो आए हैं इसमें एसटी में। सिर्फ
वैली, कश्मीर वैली का और ये पीर पंजाल सेक्टर का जो भी इसमें भेड़ पालने वाला चौपान के नाम से जाना जाता है वो रिकॉग्नाइज नहीं है। बाकी सब मुल्क के हर एक हिस्से में जहाँ भी चौपान का ये ट्रेड चल रहा है, काम चल रहा है, भेड़ बकरियां पालते हैं, वहां तो ये रिकॉग्नाइज हो गया है। ये पिछली बार हमने कमीशन में भी ये बात उठाई है, असेंबली में भी बात उठाई है। मैंने खुद उस वक्त के चीफ मिनिस्टर साहब उमर अब्दुल्ला साहब थे, उन्होंने कहा कि मुझे चौपान ये क्या है। मैंने उसको सर समझाया कि हमारी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं थी आज तक कि आपको ये पता हो जाता कि चौपान क्या है। अगर उसने कहा कि अगर गद्दी इसमें आए हैं, ये चंगपा आए हैं, तो चौपान क्यों नहीं आया फिर। दैट टाइम हम तो उस वक्त ये रिप्रेजेंटेशन हमारी नहीं थी। मैं तो खुदा का चलो अब आपके माध्यम से तो आपके इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन से तो, और लतीफ साहब भी अभी बहुत अच्छी बात कह चुके हैं कि हम डिजर्व करते हैं एसटी के लिए, क्योंकि हम शाना बशाना हर कोई ट्रेड अपना उसी तरीके से करते हैं। ओके, आई रिक्वेस्ट मिस्टर लतीफ, एक क्वेश्चन आया है आपके लिए। द क्वेश्चन इज, हैज द प्रॉमिस बीन फुलफिल्ड ओबीसीज वालों के लिए और चौपान के लिए? हैज द प्रॉमिस बीन फुलफिल्ड? पहले मिस्टर लतीफ आंसर करेंगे, फिर मिस्टर गुलाम मोहिद्दीन आंसर करेंगे, फिर मिस्टर गुलाम मोहम्मद। क्वेश्चन छोटा है लेकिन आंसर इसका बहुत बड़ा है। हैज द प्रॉमिस बीन फुलफिल्ड मिस्टर लतीफ और ओबीसीज? सर, अगर हमारा प्रॉमिस जो गवर्नमेंट ने किया होता ओबीसी के साथ वो फुलफिल हो गया होता तो शायद हम आज आपके चैनल के माध्यम से अपने हक की जो है वो दुआ नहीं दे रहे होते। अफसोस ही यही है कि किसी ने भी ओबीसी के साथ कोई भी वादा किया जो वो आज तक पूरा नहीं किया, चाहे वो साबका हुकूमतें हो, चाहे वो जो आज की मौजूदा हुकूमत हो। क्योंकि आज की मौजूदा हुकूमत के लोगों को बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता थी। 2014 में ही जब इलेक्शन थी तो वो बड़े बड़े नेताओं ने जम्मू में खुद आकर ये दावा किया कि हम ओबीसी से बिलोंग करते हैं, हम जम्मू कश्मीर के ओबीसी को उनका हक दिलाएंगे, हम 27% रिजर्वेशन देंगे। तो बावजूद इसके के वो पावर में आए, अब टेनवर चल रहा है, तो आज भी उनके साथ किया हुआ कोई भी वादा जो है वो फुलफिल नहीं हुआ। अभी तक नॉमिनी कलेक्शन ओएससी का जो है ओबीसी में तक नहीं किया गया, 27% रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट नहीं हुई। लोकल बॉडी इलेक्शन में जो पंचायती राज सिस्टम और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है उसमें रिजर्वेशन की बात नहीं हुई, इम्प्लीमेंट नहीं हुई। लेकिन मैं वो चीजें कह रहा हूँ जो बाकी मुल्क के बाकी हिस्सों में इम्प्लीमेंटेड है, 27% रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेड है। इसको ये जो लोकल बॉडी इलेक्शन में जो पंचायती राज सिस्टम है 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है रिजर्वेशन की, वो इम्प्लीमेंटेड है। और जम्मू कश्मीर ही एक ऐसा है जहाँ पे मैं तो 27% रिजर्वेशन देते हैं ओबीसी को, ना ही जहाँ पे जो उनकी लोकल बॉडी इलेक्शन में ना असेंबलीज में उनकी रिप्रेजेंटेशन है। और बेसिकली ये जम्मू कश्मीर के ओबीसी को एक हक जो है वो छीन कर पहले 21% आरबीए को दिया जा रहा था, अब उसमें से घटा के 10% दिया जा रहा है। जो आरबीए का 10% दिया वो ओबीसी का हक था, वो ओबीसी को दिया नहीं, हो ओबीसी फिर 2 से 4 पे जाके अटक गया है। और कम्युनिटी 47 आर्टिकेट में है, 15 की ऑनलाइन में लगी है रिकमेंडेशन। तो किसी भी सरकार ने आज तक जो है कोई भी प्रॉमिस जो ओबीसी के साथ किया वो फुलफिल नहीं किया। बावजूद इसके कि 1947 के बाद आजाद हुए मुल्क को 70 साल हो गए हैं, मंडल कमीशन रिकमेंडेशन तो इम्प्लीमेंट हुए आज 32 साल हो गए हैं, 1992 में हुए थे इम्प्लीमेंट। तो अब 3 दिहाई से ज्यादा हो गया है, तो कोई भी जो है उसके बाद भी पर कोई भी प्रॉमिस जो है वो फुलफिल नहीं हुआ। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और गृह मंत्री अमित शाह जी से अपील करता हूँ
और हमारे आईजी मनोज सिन्हा जी से अपील करता हूँ कि ये जो गवर्नमेंट ने इलेक्शन के दौर में ओबीसी और जम्मू कश्मीर के साथ वादे किए थे उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। 2.5% रिजर्वेशन जम्मू कश्मीर में ओबीसी के लिए इम्प्लीमेंट की जाए और लोकल बॉडी इलेक्शंस में जो है इलेक्शन से पहले रिजर्वेशन जो है वो पंचायती राज सिस्टम में और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि जम्मू कश्मीर का ओबीसी भी अपलिफ्ट हो। ये कोई प्रावधान अपलिफ्टमेंट ऑफ दीज कम्युनिटीज के लिए बनाए हैं जो अदर बैकवर्ड क्लास मीन के दो क्लासेस विच आर वीक एंड डाउन ट्रोडन और जो अपलिफ्ट नहीं हुई है अदर देन एससी प्लस की। तो इसलिए ये बहुत बड़ा पॉपुलेशन का चंक है। जब तक ये अपलिफ्ट नहीं होगा जम्मू कश्मीर जो है अपलिफ्ट नहीं हो सकता। राइट, थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं मिस्टर गुलाम मोहिद्दीन साहब से कहता हूं, what sort of development has been done by sheep husbandry department regarding Chaupan from last 20 years? मोहिद्दीन साहब, किस किस्म का डेवलपमेंट शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ने किया है चौपानों के लिए 20 सालों से? जी सर, जहाँ तक शीप डिपार्टमेंट का ताल्लुक है सर, बहुत बड़ी डेवलपमेंट की है उसने कि वहाँ पे एक हमारे नाम से कम्युनिटी के नाम से एक पोस्ट हुआ करता था शफर्ड सर, 4th क्लास पोस्ट था शफर्ड, उसको एबॉलिश किया। अब उसकी जगह पे असिस्टेंट स्टॉक्समैन लाया सर वहाँ पे। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट की शीप डिपार्टमेंट में। रही बात बेड़ू की सर, जहां तक मदद करने की बात है, एक रैम जो कि डिपार्टमेंट का चौपान के साथ होता है ब्रीडिंग के लिए क्लास में, तो आज से पहले 10 साल उनको 150 दिया जाता था। अब उस 150 का आज तक कहीं पे 500, कहीं पे 600, कहीं पे 1000 किया सर। अगर उस चौपान के साथ दो रैम भी होंगे, 10 रैम भी होंगे, एक चौपान को ज्यादा से ज्यादा 150 से लेकर 1000 रुपए तक वो इंसेंटिव देते। उनके नॉमेनक्लेचर में उसका नाम रखा है इंसेंटिव, जबकि वो मजदूरी देते हैं सर, और उस मजदूरी में भी वो इजाफा नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सर शीप डिपार्टमेंट की डेवलपमेंट है। जिस चौपान को या चौपान के बाद भी, चौपान के अलावा जहां जहां पे डिपार्टमेंट ऑफ शीप ने शीप यूनिट दिए हैं आज तक, अगर उनकी वेरिफिकेशन की जाए, इंक्वायरी की जाए, कहीं पे भी मौजूद नहीं। हम ऑन रिकॉर्ड ये बात कर रहे हैं कि वो मौजूद नहीं है। खाली लोगों ने सब्सिडियां निकाली और उन यूनिट्स के नाम पे बैंक से कर्जा लिया, बाकी खत्म। ये डिपार्टमेंट की 20 सालों से सर आपके सामने डेवलपमेंट है। अगर सर आप देखेंगे कि एनिमल हस्बेंड्री ने कितनी तरक्की की, व्हाइट रेवोल्यूशन लाया, उन्होंने ग्रीन ये ब्लू रेवोल्यूशन फिशेज में लाया, लेकिन शीप डिपार्टमेंट के पास वूल किया हुआ करता था सर, उनके पास एक वूल बोर्ड था, उस वूल बोर्ड को भी खत्म, वो वूल बोर्ड कहीं पे नहीं है सर। अब लोगों की नजरें जिनके पास वूल है वो हरियाणा की तरफ या पंजाब की तरफ उनकी नजरें होती है। तब हरियाणा से, पंजाब से वो कमल वाले आ जाए, जो उनसे कमल वगैरह बनाते हैं उस ऊन से, वो तब आ जाए हमें 20 रुपए, 30 रुपए, 25 रुपए पर केजी दे। ये डिपार्टमेंट की डेवलपमेंट है सर आज का। दो चार अब सर इसके अलावा मैं कौन सी डेवलपमेंट दूं आपके सामने? तो नहीं, आपने बोला इट इज ऑन रिकॉर्ड, आपने बोला इट इज ऑन रिकॉर्ड सर, इट इज ऑन रिकॉर्ड। मैं मिस्टर गुलाम मोहम्मद चौपान साहब से बताना चाहता हूं
As being a backbone of sheep husbandry department, ये backbone है sheep husbandry department का, क्या steps डिपार्टमेंट ने उठाए हैं डेवलपमेंट ऑफ चौपान कम्युनिटी? सर अगर शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट को ये एहसास होता कि चौपान एक बैकबोन है हमारी, तो आज चौपान इस वक्त ये मतलब आपके सामने ये ऊंची आवाज में बात नहीं करते। जो शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का जो अपना फ्लॉक है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में तकरीबन 10 जगहों पर इस वक्त है। रालपत्री में है, किसामा में है, डक्सम में उनके अपने फार्मर्स, जो उनका अपना फ्लॉक वहां है, वो फ्लॉक कहाँ जाता है? वो फ्लॉक जाता है इसी चौपान के साथ, इसी चौपान के बैक में वो पला बड़ा हो रहा है। अगर शीप डिपार्टमेंट की बात करेंगे, अभी मजीद साहब कह रहे थे उनकी क्या डेवलपमेंट है इन फार्मर्स में, जो उनके अपने फ्लॉक्स हैं, लाइव स्टॉक जो उनका अपना है, वो उन मुलाजिम की तनख्वाह ही नहीं बराबर करती जितना उस फ्लॉक पे उनको खर्चा आ जाता है। और खैर वो दूसरी बात है, उन्होंने ब्रीडिंग के लिए यहाँ कश्मीर मेरिनो या वो बड़े बड़े वो मतलब ब्रीडिंग के लिए उन्होंने अपना फ्लॉक हमारे लाइव स्टॉक के साथ रखे थे। उनका तो इन्होंने कहा कि वो क्या इंसेंटिव दे रहे हैं, वो तो मजदूरी एक चौपान की थी, वो भी उन्होंने बिल्कुल खत्म कर दी। दूसरी बात ये, अगर चौपानस के लिए उनको वो शीप यूनिट्स देने थे, उसका सिरे से ही चौपान ही हकदार था, क्योंकि इसका उठना बैठना पालना पोसना जो भी है भेड़ के साथ है। किसी फार्मर को ये कोई यूनिट देते हैं, उनको क्या पता, अगर बिना सेंग के उनके सामने कोई भेड़ू रखा जाएगा तो वो उसको भी भेड़ कहेंगे, वो उसको पता नहीं ये मेल है या फीमेल है। इन्होंने क्या किया, शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ने क्या किया कि चौपान को सिरे से ही ये अवॉइड कर दिया। कहीं ज्यादा से ज्यादा अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में 2 या 4 यूनिट दिए हैं डेवलपमेंट के लिए, चौपान की डेवलपमेंट के लिए, लेकिन चौपान की डेवलपमेंट के लिए एक स्कीम आई थी, कहीं 5 बेड थे, कहीं 10 थे, और जब भी उन्होंने दिए हैं और पीछे से वो रह रहे थे उसको कि ये क्या है, कहाँ तक है, कहाँ कैसे उठा, कैसे बैठा, लेकिन जब कि उन्होंने बाकी फार्मर्स को दिए या बाकी लोगों को दिए ये यूनिट, उनके पीछे कोई इंक्वायरी नहीं है कि शीप्स कहाँ है, यूनिट कहाँ है, उनके लिए कार्ड शेड्स कहाँ है, उनके लिए शेल्टर शेड्स कहाँ है। इस वक्त भी आज भी ये कहीं दे रहे हैं, आज जियो टैग कर रहे हैं कि शेल्टर कहाँ है, वो कहाँ है, ये कहाँ है। लेकिन सर अगर देखा जाए, शीप डिपार्टमेंट का जो भी फ्लॉक है वो चौपान की ही बुनियाद पर ही कायम है। एक शीप डिपार्टमेंट को ये चाहिए था कि इस चौपान को डेवलप करने के बजाय, मैंने पिछली बार भी, अभी मैजी साहब ने भी कहा कि चौपान के लिए उन्होंने एक शेफर्ड रखा था, एक पोस्ट रखा था शेफर्ड का, उसमें चौपान ही डिजर्व करता था। जब हमने आवाज उठाई ये शेफर्ड हमारा हक है, तो उसका नामन कल्चर ही उन्होंने चेंज कर दिया, वो खत्म ही कर दिया उन्होंने, वो शेफर्ड उस पोस्ट को उन्होंने असिस्टेंट स्टाफ में रखा। और क्या क्या डेवलपमेंट हम क्या बताएंगे, किस तरह अगर आप भी देखेंगे, वो ये शीप डिपार्टमेंट खुद भी जानते हैं, सारा डिपार्टमेंट जानता है कि चौपान के ये माध्यम से ही हम ये सारा कुछ करते हैं। अगर इन्होंने इस वक्त 200 यूनिट या 300 यूनिट दिए हैं फार्मर्स को, उसका पालनहार कौन है, उसका केयर टेकर कौन है, उसको हाईलैंड पास्चर्स में कौन लेता है, उसकी देखरेख कौन करता है, उनका पालने वाला, वो एक फार्मर को क्या पता है। वो सिर्फ शर्मा के इन जनवरी और फरवरी के महीने 2 महीने उसको घर में रखने पड़ते हैं, जो बर्फबारी का महीना, बाकी मार्च से लेकर तो दिसंबर तक हम ही उसका पालनहार हैं। हम ही उसको नीचे प्लेन्स में भी लेते हैं, हम ही उसको हाईलैंड पास्चर्स में भी लेते हैं। अगर हम डिपार्टमेंट का बैकबोन नहीं है तो और कौन? भले ही कि हमारे ये यूनिट्स हमें नहीं मिले हैं, अगर इन्होंने इस वक्त 200 या 400 या कितने हजार दिए हैं, अभी क्या पता डायरेक्टर साहब क्या कहेंगे कितने हजार दिए हैं, ऑन रिकॉर्ड क्या होगा उनके पास, उनका रखवाला कौन है, उनका पालने वाला कौन है, उनके साथ पीछे दौड़ने वाला कौन है, बर्फ हो या बारिश हो।
लाठी लेके खड़ा कौन होता है उनके पीछे? एक चौपानी होता है ना। Okay. इसी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम डिपार्टमेंट की बैकबोन है कि नहीं। राइट सर, मैं लतीफ साहब से मुखातिब हूं। Has the reservation meant for OBCs been diverted to undeserving sections? क्या ये रिजर्वेशन जो OBCs के लिए है, क्या ये डाइवर्ट किया गया है अनडिजर्विंग सेक्शंस? प्लीज इस पे आप लतीफ साहब बताइए। बिल्कुल सर, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में या हमने कहीं ये नहीं सुना कि रिजर्वेशन जो है वो एरिया के बेस पे है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में कोई एरिया के बेस पे रिजर्वेशन का कोई प्रावधान था। पर जब मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन इम्प्लीमेंट करने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार रिजर्वेशन का प्रावधान बना, उस वक्त ओबीसी का नॉमिनक्लेचर चेंज करने की वजह यही थी कि इनका जो शेयर है रिजर्वेशन का वो डाइवर्ट करना, और उसमें से मेजर शेयर डाइवर्ट किया गया। 21% रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया को दे दिया, 2% उसमें एक्स सर्विसमैन वगैरह को रख दिया, और ओनली 2% हमारा नॉमिनक्लेचर जो अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग थे उनका नॉमिनक्लेचर चेंज करके अदर सोशल कास्ट में डाला, और 21 कम्युनिटियां उस वक्त और आज की डेट में 27 कम्युनिटियां, और 21 कम्युनिटियों को 2% रिजर्वेशन दे के रखी इन्होंने 1992 के बाद से लेकर 2020 तक, और 2020 में 27 कम्युनिटियां करने के बावजूद रिजर्वेशन जो है वो 4% हुई है। तो ये क्लियर कट एक केस था, एडमिटेड फैक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ओबीसी का रिजर्वेशन डिल्यूट करके आरबीए को दी गई। हालांकि आरबीए जो है वो कोई क्लास ऑफ पीपल नहीं है, दे आर नॉट कास्ट। हिंदुस्तान में कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन थी, और अदर देन एससी और एसटी के बाद जो कास्ट जो वीक और अनप्रिविलेज्ड और डाउन ट्रोडन थी, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए जो अदर बैकवर्ड क्लासेस टर्म जो थी वो कॉन्स्टिट्यूशन में बनाई गई थी। बट इन्होंने आरबीए में हर एक कम्युनिटी को डाल दिया, पूरे एरिया के एरिया डाल दिए, तहसीलों की तहसीलें डाल दी, तो उसमें जो अनडिजर्विंग थे उन कास्ट्स को बेनिफिट हुआ, और ओबीसी का जो थी रिजर्वेशन जो ओबीसी के लिए मेंट हुई थी, जिसके लिए मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन थी, जिसके लिए काका कलेरकर कमीशन की रिकमेंडेशन थी, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 9 जजेस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाकर इंसानी जजमेंट दी थी, उसको डाइल्यूट करने के लिए और ओबीसी को रियल वो क्लासेस जो बैकवर्ड थी उनको उनके हक से महरूम रखा गया, और उनका हक जो है वो डाइल्यूट करके जो है वो रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड के नाम से जो है, और वो आज तक चला आ रहा है, और आज तक जम्मू कश्मीर का उसी डाइल्यूशन की वजह से ओबीसी जो है वो अपना नॉमिनक्लेचर भी खो बैठा है और अपना 27% का रिजर्वेशन हक से भी महरूम है। ओके सर, मैं मिस्टर गुलाम मोहिद्दीन साहब से क्वेश्चन कर रहा हूँ। मिस्टर गुलाम मोहिद्दीन साहब जी सर, विच स्टेप, हाँ, कौन से स्टेप लेने चाहिए, विच स्टेप शुड बी टेकन बाय द शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, कौन से स्टेप शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट को लेने चाहिए रिगार्डिंग हाईलैंड पास्चर्स? सर सबसे पहले शीप डिपार्टमेंट को चाहिए कि वो कुछ मतलब जो मेन पास्चर्स है वहाँ पे शेल्टर शेड्स बनाए, और वहाँ पे जो यार्ड्स हैं, चौपानस के लिए यार्ड्स हैं, उनकी देख रेख करे, उनको अच्छी तरह से बनाए ताकि उसका जो शीप है वो लायन वगैरह से बचे, चाहे टाइगर्स वगैरह से बचे। और सर वहाँ पे जो रास्ते जाते हैं उसको मतलब हम कहते हैं उसको बैक डेवलपमेंट, हाईलैंड पास्चर को डेवलपमेंट के लिए वो अपने साथ सॉइल जो कंजर्वेशन डिपार्टमेंट है उनको अपने साथ ले सकते हैं और वहाँ पे डेवलपमेंट कर सकते हैं। ये 3 चीजें, और सर इसके साथ साथ जो भी जड़ी बूटियां मतलब पहाड़ों पे थी
क्योंकि टर्माइल रहने की जो टर्माइल था लास्ट ईयर उसमें, उसकी वजह से उन जड़ी बूटियों को खत्म किया। या तो उनकी स्मगलिंग हो गई, या तो उनको वहाँ पे रखा ही नहीं, निकाला गया। बहुत सारे लोग, क्योंकि हमारे अलावा भी बहुत सारे लोग पहाड़ों पे होते हैं जिन्होंने जड़ी बूटियों को निकाला, और डिपार्टमेंट को चाहिए कि वो वहाँ पे बहुत, और इसके साथ साथ अब बहापुर में बहुत सारी घास ऐसी भी आई है जो कि वीड्स कहलाते हैं, जो कि वहाँ पे मतलब अच्छा घास नहीं है। पहले एक जमाना हुआ करता था, मैंने सुना है सर, कि डिपार्टमेंट जहाजों के जरिए, हेलीकॉप्टर के जरिए वहाँ पे घास, अच्छे घास के बीज डालते थे, तो करते थे, उसमें पहाड़ों में खाद डालते थे कभी कभी। लेकिन अब ये पास्चर्स की तरफ कोई तवज्जो नहीं देते। आस्तिक से ही नहीं निकलते हैं तो पास्चर्स में क्या जाएंगे सर? पहले जो डॉक्टर्स हुआ करते थे, हमारे अजदाद, मतलब हमारे जो बुजुर्ग हैं, वो कहते थे कि जो एक डॉक्टर हुआ करता था, BVSC जो डॉक्टर हुआ करता था, वो कम से कम 2-3 बार 30 लाख को राहत में नजर देने के लिए आते थे। अब इनके स्टाफ, इसमें स्टाफ असिस्टेंट वो भी कम ही जाते हैं। अगर जाते भी हैं वो बस दवाइयाँ बेचने के लिए जाते हैं, और ज्यादातर वहाँ पे जाते नहीं। इनको चाहिए कि शेल्टर शेड वहाँ पे बनाए, इनको चाहिए कि घास का बीज वहाँ पे लगाए, इनको चाहिए कि वो घास का डेवलपमेंट करे, इनको चाहिए कि वहाँ पे चौपान से प्रोटेक्शन दे, बस सर। राइट। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा मिस्टर गुलाम मोहम्मद चौपान से, व्हाट्स योर मैसेज डाउन टू द सोसाइटी एंड टू द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर यूटी? सर, मिस्टर गुलाम मोहम्मद चौपान साहब, आपका क्या मैसेज है सोसाइटी के लिए और टू द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर यूटी? हम क्या मैसेज उनको देना चाहते हैं? अलबत्ता हम एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इस पसमानदा तबका चौपान कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने में अपना सहयोग पूरा दें, और सोसाइटी को हम ये कर भी है, जहां भी है, जिस तरीके से भी है, उसको अपलिफ्ट करने में अपना योगदान दें, और उसको नीचा दिखाने के लिए कोशिश ना करें, क्योंकि ये आपका ही भाई है। हम आपके ही यहाँ से आए हैं। पहले इस वक्त अगर देखा जाए, पिछली बार भी तारिक साहब ने खुद कहा था कि कश्मीर में जो भी सबसे पहले आया वो चौपान ही की सूरत में आया था, क्योंकि उसके पास माल मवेशी था। तो इसी से अगर कोई फार्मर गया, कोई तुर्खान बन गया, कोई जमींदार बन गया, कोई कुछ बन गया, तो आखिरकार इस भेड़ बकरियां पालने के लिए एक न तो एक वो रहना चाहिए। इसलिए हम भाई हैं। तो सोसाइटी में हमारा अपना वैल्यू होना चाहिए, अच्छी तरह से हमारा वैल्यू होना चाहिए। और रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि हमारी जो दीरी ने मांगे हैं, चाहे सो किसी भी तरह की हो, चाहे सो डेवलपमेंट की हो, चाहे एजुकेशनल हो, इकोनॉमिकल हो, सोशली हो, तो उसको अपलिफ्ट करने में पूरा ख्याल रखें। यही हमारी मैसेज है, इस वक्त यही हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से और सोसाइटी से। ओके, मैं मिस्टर गुलाम मोहिद्दीन चौपान से बोलता हूं। प्लीज अपनी मैसेज दे दें सोसाइटी को और लोगों को, और सॉरी सोसाइटी को और गवर्नमेंट को। सर, गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि उनको मैसेज नहीं दे सकते हैं सर। गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि चौपान को अपलिफ्ट करने के लिए इसको अपना राइट दिया जाए, इसको ST का दर्जा दिया जाए। इसके साथ साथ अगर अभी ST आप नहीं दे सकते, इसके लिए एक बोर्ड बनाओ, डेवलपमेंट बोर्ड बनाओ रियासत, मतलब UT की सतह पे, ताकि ये इसकी थोड़ी बहुत कुछ मांग मतलब पूरी हो जाए। और सोसाइटी से हम यही गुजारिश करते हैं, सोसाइटी से हम प्लीज यही कहते हैं कि इज्जत दो, इज्जत लो, इज्जत की नजर से हमें भी देखो और हम भी आपको इज्जत की नजर से देखो। थैंक यू। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं मिस्टर एडवोकेट लतीफ साहब से, व्हाट इज योर मैसेज रिगार्डिंग OBCs एंड चौपान टू द सोसाइटी and to the administration and the UT government Jammu Kashmir.
योर आपको कहना है ओबीसीज के लिए भी और चौपान के लिए भी? तारक भाई, जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए बड़ा साफ सा मैसेज है रिगार्डिंग ओबीसी और चौपान के लिए कि जम्मू कश्मीर का ओबीसी 32 साल हो गया इंदिरा जजमेंट के बाद आज तक अपने हक से महरूम है। बहुत सी गवर्नमेंट्स ने इनके साथ वादे किए पर वादा पूरा नहीं किया। आज भी ये अपने हक के लिए आवाज़ें बुलंद करके बैठे हैं और काफ़ी सारी जो आज की जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने है, उसके काफ़ी सारे एक बड़े लीडरान ने जम्मू कश्मीर के ओबीसी के साथ टाइम टू टाइम वादे किए हैं, प्रॉमिस किए हैं कि उनको उनका हक दिलाएंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को ये अपील करता हूं कि ओबीसी के जो भी हक हैं उनके हक को जल्दी से जल्दी जो है उनके हक दिलाए जाएं और 27% रिजर्वेशन जो है वो जल्दी से जल्दी जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट की जाए और रिजर्वेशन जो है वो लोकल बॉडी इलेक्शंस में भी इम्प्लीमेंट की जाए। और इस चीज़ का आने वाले इलेक्शन में जम्मू कश्मीर में बीजेपी को बहुत बड़ा बेनिफिट होगा अगर वो इलेक्शन जम्मू कश्मीर के ओबीसी के मुद्दे को हल करने के बाद अगर करवाएंगे तो, क्योंकि जम्मू कश्मीर का ओबीसी जो है आज की डेट में तकरीबन 40 से 45% है और ये जम्मू कश्मीर का ओबीसी जो है बीजेपी को ही पिछली इलेक्शनों में वोट करता आया है, जिस वजह से इनकी इतनी अच्छी गवर्नमेंट जो है वो सीटें निकलती आई हैं। और अगर आगे भी इनको जम्मू कश्मीर के ओबीसी से वोट लेना है तो जो ओबीसी के मुद्दे हैं वो इलेक्शन से पहले फौरी तौर पर हल करने चाहिए। और जो जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन है जम्मू कश्मीर की, उनसे मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी अपील करूंगा कि चौपान कम्युनिटी का जो मुद्दा है कि उनको एसटी के साथ एसटी का दर्जा दिया जाए, वो बिल्कुल जायज़ और मुनासिब डिमांड है, क्योंकि रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ कंट्रीज में और इनका जो रहन सहन है वो बिल्कुल एसटी के साथ मिलता है। तो इसीलिए मैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से ये अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि ओबीसी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की और चौपान कम्युनिटी की जो मांगे हैं वो बिल्कुल जायज़ और मुनासिब मांगे हैं, उनको बिला ताखीर जो है जल्द से जल्द जो है वो हल किया जाए। और अगर ऐसा करती है गवर्नमेंट आने वाले चुनाव में, चाहे वो पार्लियामेंट्री हो, असेंबली हो या पंचायती चुनाव हो, उसमें बीजेपी को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू। ओके, मिस्टर अशरफ चौपान ज्वाइन कर चुके हैं हमारे साथ। मिस्टर अशरफ चौपान हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। मिस्टर अशरफ प्लीज अपना माइक अनम्यूट कीजिए। मिस्टर अशरफ आपका क्या मैसेज है? प्लीज, किसी के घर में बातें चल रही हैं, प्लीज वो म्यूट कर ले माइक। मिस्टर अशरफ आपका क्या मैसेज है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर यूटी को और टू द सोसाइटी चौपान की तरफ से? सर गुड इवनिंग सर। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ सर कि आप हमें बार बार ये मौका देते रहते हैं कि आपके प्लेटफॉर्म पे आके हम अपनी जो वैलिड ग्रीवेंसेस हैं उनको सामने रखें। गवर्नमेंट ऑफ जे से मेरा और एलजी साहब से और एट लार्ज बीजेपी की लीडरशिप से हमारा यही मुतालबा रहा है कि जो चौपान कम्युनिटी को जो अपना जो राइटफुल जो प्लेस है, रिजर्वेशन है, वो मिलनी चाहिए। बहुत हो गए, काफी साल हो गए कि हमें वी आर एट दी रिसीविंग एंड ऑफ दिस रिजर्वेशन स्टिक। जो एक्चुअल में हम हक रखते हैं कि हमें भी रिजर्व कैटेगरी में रखा जाए। SC ST जो हमारा मुतालबा रहा है और अभी जो OBC का जो मसला चल रहा है हमारा, अब हमें ST नहीं दे रहे हैं, फिर OBC में कभी OSC में, यहाँ से वहाँ से वहाँ, फुटबॉल की तरह हम कर रहे हैं और हमें ग्राउंड लेवल पे कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो यही मुतालबा होगा कि हमारे जो ग्रीवेंसेस है, जो वैलिड ग्रीवेंसेस हैं,
आप देख लीजिए जो बाकी जो एसपी उनको जो मिलता है जिस यार्डस्टिक और जिस मतलब एलिजिबिलिटी के आधार पे उनको जो हक मिलता है वो रिजर्वेशन का, उस सब में हम खरे उतरते हैं। हम सब वो प्रॉब्लम फेस करते हैं जो बाकी कम्युनिटीज फेस करती हैं, रिजर्व कम्युनिटीज, लेकिन फिर भी हमें ये हक अभी तक नहीं दिया गया। और अभी भी ऐसा लगता है कभी कभी कि वो जो हमारा थे उसको फिर से मजल डाउन कर दिया जाता है। बस यही मैसेज रहेगा कि इस बार हमें यह हक दिया जाए। ओके, मैं रिक्वेस्ट करता हूं मिस्टर मोहम्मद लतीफ साहब से, पीआर न्यूज के माध्यम से आपका क्या कहना है पीआर न्यूज के लिए? पीआर न्यूज के लिए तारिक भाई मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि लास्ट तकरीबन 2 सालों से आपने जम्मू कश्मीर के ओबीसीज की आवाज़ को बुलंद करने के लिए बार बार ऐसी डिबेट्स करते हैं। तो हम आपका दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हैं और आपसे अपील करते हैं कि अपने चैनल के माध्यम से और हमारी जो मांगे हैं, हमारी आवाज़ को बुलंद कीजिए और ऐसी डिबेट्स आगे भी करते रहिए ताकि गवर्नमेंट तक हमारी आवाज़ पहुंच सके, दिल्ली तक हमारी आवाज़ पहुंच सके और जो हमारी मांगे हैं, जो जायज़ मांगे हैं, वो जल्द से जल्द जो है वो हल हो। पीआर न्यूज़ का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि वो मुख्तर खसूसी तौर पर जो है ओबीसी की आवाज़ जो उठाने के लिए हर वक्त जो है वो कदम उठाती है। आई एम हाईली थैंकफुल। मैं अपनी तरफ से, अपनी कौम की तरफ से पीआर न्यूज़ का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद करता हूँ और दरख्वास्त करता हूँ कि आइंदा भी ऐसी डिबेट्स जो है वो करते रहिए और भी लोगों को जो है और थोड़े पॉलिटिकल लोगों को भी इस डिबेट में इन्वॉल्व कीजिए ताकि हमारी आवाज़ उनके कानों तक भी पहुंच सके। थैंक यू तारिक भाई। ओके, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मिस्टर गुलाम मोहम्मद चौपान साहब से, आपका पीआर न्यूज के लिए क्या अप्रोच है? पीआर न्यूज तो हमारी आवाज, पीआर न्यूज तो हमारी रहबर है, पीआर न्यूज तो हमारी रहनुमाई कर रही है। इस आशा के साथ हम आपसे अदा करते हैं कि आप हमको आगे ले रहे हैं, आप हमारे जिस तरीके से हमारे आवाज को सहयोग दे रहे हैं, इसको हाईलाइट कर रहे हैं, तो करते हैं, हम उसके आपके आभारी हैं। थैंक यू, थैंक्स। ओके, मिस्टर गुलाम मोहिद्दीन चौपान साहब, आपका क्या है पीआर न्यूज के माध्यम से क्या कहना है? जी सर, पीआर न्यूज को हम समझते हैं कि ये वॉइस है वॉइसलेस लोगों की। हम ये समझते हैं कि शायद ये हमारे लिए अल्लाह ने कोई नया रास्ता नहीं दिया है। तो पीआर न्यूज के हम बहुत ही शुक्रगुजार है कि वो हमें अपने डिबेट्स में लाते हैं, हमारे जो मांगे हैं उनको आगे ले जाता है। और हम उम्मीद यही रखते हैं कि सर ये जर्नलिज्म का असली मकसद जो है वो यही है। हम यहाँ पे मतलब मानते हैं कि जर्नलिज्म आप लोगों को। थैंक यू। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मिस्टर मोहम्मद अशरफ चौपान साहब से, व्हाट इज योर मैसेज टू द पीआर न्यूज इंडिया? मिस्टर अशरफ चौपान, आप प्लीज अनम्यूट माइक कीजिए। मिस्टर अशरफ, व्हाट इज योर मैसेज टू पीआर न्यूज इंडिया? Sir, I am very grateful for your platform and for your efforts, sir. आपकी वजह से हमारी जो आवाज है वो हम ये चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंच जाए और उनको हमारी जो हम जो मसाइल के दो चार हैं, हम जिन मसाइल से दो चार हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी जो भी रिक्विजिट एजेंसीज हैं उनके पास पहुंचाने के लिए हम आपका बहुत ही शुक्रगुजार है सर कि आप हमें बार बार अपने प्लेटफॉर्म पे आने के लाते हैं और हमें स्पेस प्रोवाइड करते हैं कि जहाँ पे हम अपनी ग्रीवेंसेस और अपनी जो चैलेंज जो हम फेस करते हैं उनको आपके सामने रखें और एट लार्ज पब्लिक तक वो बात पहुंच जाए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, द थिंग इज दैट मैं अनाउंसमेंट करना चाहूंगा, हम अभी 1-to-1 लाइव दर्शन पे भी हैं, ई बाबा पे भी हैं और जिंगा टीवी पे भी हैं, ओटीटी पे हम लाइव हैं और हम यूट्यूब पे भी हैं और ट्विटर पे भी हैं। लास्ट पे मैं बोलना चाहूंगा, जो भी हमसे राबता करना चाहता है, मेरा नंबर है 7678 436668 7678 436668। लास्ट में मैं बताना चाहूंगा
काविशें ऐसी हैं कि जिंदगियां चलती रहती हैं, काविशें ऐसी हैं कि जिंदगियां चलती रहती हैं। ओबीसी और चौपान वालों के साथ काविशें ही रहनुमाई करती रहती हैं। शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you. Thank you.